Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about the major elements related with the formation of Rajya Sabha, under which we discussed about the maximum number of members which can be there in Rajya Sabha along with the present members. We discussed about the nominated members, the elected members, along with that the members related with different states, means the different members who are representing different states of the country. Along with that we discussed about the tenure of the members of Rajya Sabha under section 83rd of the Indian Constitution. Along with that the qualifications to be a member of Rajya Sabha under section 84th of the Indian Constitution. And in the last we concluded our discussion with chairman and deputy chairman. The provisions related with the appointment, removal and the powers of chairman and deputy chairman are mentioned in section 89, 90, 91 and 92 of the Indian Constitution. Okay, so we can say that 89th section, 90th section, 91st and 92nd section all are related with the speaker or deputy speaker or chairman or deputy chairman of Rajya Sabha. Okay, vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. After completing all this kind of things, here as the next we are going to discuss about the powers of the parliament. Actually there are two types of government in the democracy, which are direct or indirect form of democracy. The indirect democracy of representative democracy is further divided in two forms, which are the parliamentary and the presidential. In the presidential form of democracy, we generally find the power centered in the hands of the president, but in the parliamentary form of democracy, the power centered in the hands of the parliament. Means we can say that parliament is authorized for making laws for the administration of the country. In India also we are having the parliamentary form of government. What I mean to say that is कि हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है. और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट होती है. सिंपल सा टर्म ये है कि इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट के हाथ में, यानी सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज़ पार्लियामेंट. मीन्स लोकसभा and Rajya Sabha along with President. Okay, so now the question is, which are the powers provided to the Parliament by the Constitution which make the Parliament the supreme authority of administration? यानी सारी पावर्स जो पार्लियामेंट के हाथ में हैं वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है. ओके, सो are you getting me what I mean to say that? I mean to say that here we are going to discuss about the powers of parliament. यानी इंडिया में पार्लियामेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स हैं. तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद सेपरेट डिस्कशन ऑफ द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्य सभा. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, द टॉपिक इज द powers of parliament. So which are the powers provided by the constitution to the parliament? Actually, according to section 245,
266, section 75th, 368, 352, 54 and 66, section 61, 67, 124. Different kind of powers are provided to the parliament. So which are these powers? We will discuss one by one. Now the first thing, parliament is also known as the legislature. Legislature means the organ of the government which is related with the formation of laws. यानी पार्लियामेंट का दूसरा नाम लेजिस्लेचर है, विधायिका, जिसका मतलब है कि ये कानून बनाती है. ओके, यानी ये गवर्नमेंट का लॉ फॉर्मिंग ऑर्गन होता है. इज दैट क्लियर? सो हियर द फर्स्ट पावर इज द लेजिस्लेटिव पावर. ओके, पार्लियामेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट पावर है दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर. ओके, नाउ according to section 245 of the Indian Constitution, Parliament is authorized, means in India the Parliament is authorized by the Indian Constitution to form laws. okay, यानी हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है लॉज बनाने के लिए. Okay, Parliament can form laws on the subject mentioned in Union List, Concurrent List, and along with that sometime on the state list also. Okay, in special circumstances on the subject mentioned in the state list also. Okay, तो पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में लॉ फॉर्मिंग ऑर्गन है, यानी इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी. ओके, तो सेक्शन 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है इंडिया की पब्लिक, यहाँ के सिटीजन्स के लिए कानून बनाने के लिए. ओके, यानी पार्लियामेंट इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, और पार्लियामेंट जनरली यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है. अलॉन्ग विद दैट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है. ओके, जनरली यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाती है. अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखना है, द कंकरेंट लिस्ट is the list, or we can say that the subjects which are included in the concurrent list are matter of law formation both for the parliament or for the state legislature. okay, यानी concurrent list के ऊपर law formation का right दोनों के पास, state legislature और parliament दोनों के पास में होता है. इसमें यदि कोई dispute होता है, if there will be any dispute on any law formed on the subject related with the concurrent list between the central government or the state government, or we can say that between the parliament or the state legislature, then the law formed by the parliament will be acceptable except the law formed by state legislature. ओके, यानी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकते हैं, लेकिन यदि इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर यदि दोनों मिलकर दोनों कानून बनाते हैं, यानी लॉ फॉर्मेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के द्वारा होता है, उसमें यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉ प्रिवेल करेगा विच इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ होगा. इज दैट क्लियर? ओके, so the first power of the parliament is the legislative power which is related with the formation of laws. Means both the houses of the parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the house of the people and council of state, is for
is responsible for the formation of laws for the people of the country, which is generally related with the union list and concurrent list, and sometimes in special circumstances with the state list also. Is that clear guys? तो सबसे फर्स्ट पावर हुआ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब द पावर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, और ये पावर जो है वो सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दी गई है, जिसमें जनरली यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. नाउ एज द नेक्स्ट पावर इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ओके, so next power is the power of constitutional amendments. Okay, so according to the provisions of the Indian Constitution, Parliament is authorized to make amendment in most of the sections of the Indian Constitution. यानी पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकती है. ओके, यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि उसमें पार्लियामेंट से ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो अपने अमेंडमेंट्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन की रियल सोल को अफेक्ट नहीं करेगा. इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल, किसी भी सेक्शन को हटाया जा सकता है, उसको प्लस किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. इज दैट क्लियर? मीन्स इट कैन ऐड समथिंग, इट कैन रिमूव समथिंग और इट कैन alter something. Okay, so the power is the power of constitutional amendments. Okay, power of constitutional amendment. According to section or article 368 of the Indian Constitution, Parliament can amend, add or remove or change certain most of the sections of the Indian Constitution. यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सेक्शन को चेंज कर सकता है, उसमें प्लस कर सकता है, उसको हटा सकता है. इज दैट क्लियर? सो द पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. यानी मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को वो अकेले और समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. ओके, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है उसको हम 3 अलग अलग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अमेंड करते हैं. यानी पार्लियामेंट जो है वो 3 अलग अलग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस को अमेंड करता है. समटाइम पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट इन दी सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी. ओके, by passing a motion with simple majority of both of the houses, certain sections can be amended by the parliament. Okay, on the other hand, to amend some sections of the Indian Constitution, the parliament have to pass a resolution separately from both of the houses of parliament with 2/3 majority. Okay, and as the last one, the third point, to amend some sections of the Indian Indian Constitution, the Parliament need consent of half of the present states along with 2/3 majority of both of the houses of Parliament. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस, जिनकी जो सेक्शंस जो हैं वो अपनी वैल्यू के बेसिस पे 3 डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनकी अकॉर्डिंग अमेंड्स किए जा सकते हैं. ओके, टू मेक अमेंडमेंट इन सर्टेन सेक्शंस पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज. यानी दोनों हाउसेज, देखो यहाँ पे एक बात आपको माइंड में रखनी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वली पावरफुल है इन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें अमेंड करने के लिए, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को दोनों हाउसेज से वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है. ओके,
उससे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो सेक्शंस होते हैं उनको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में दोनों हाउसेस से वो बिल पास होना कंपलसरी होता है. Now to amend certain sections which are very important, especially the sections related with the federal structure of the country, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीज़न को इम्पैक्ट करता है, ऐसे सेक्शंस को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी जो प्रेजेंट स्टेट है इंडिया में, फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 28 स्टेट्स इन द कंट्री, तो उन 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट 14 स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रपोजल अपने यहाँ पास करके अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पार्लियामेंट को भेजना होता है. यानी कम से कम हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो अपना कंसेंट यदि इसके फेवर में देते हैं, ओनली देन पार्लियामेंट कैन अमेंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर? तो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइज इन दी हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. ये कम्प्लीटली पार्लियामेंट का ही पावर है, उसी के पास में होता है. और ये पावर सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दिया गया, जिसमें पार्लियामेंट 3 अलग अलग प्रोसेस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकती है. इन सम सेक्शंस विद सिंपल मेजोरिटी, ऑन द अदर हैंड इन सम सेक्शंस विद 2/3 मेजोरिटी, एंड इन सम सेक्शंस विद 2/3 मेजोरिटी along with the consent of half of the present states. Is that clear, guys? So this is what we call power of constitutional amendment of the